So, hello Milan, I am Kriti Mehta, team member of FindMyTest.com. We are glad that you joined us today. I would like to congratulate you for securing All India Rank 14 in GATE 2021 Petroleum Engineering Examination. Would you please introduce yourself to our viewers? Thank you. My name is Milan Kumar Lathia and I am graduated from the Pandit Dindayal Petroleum University in 2010 in Petroleum Engineering. Okay, And now I am pursuing in the MTech in ISM Dhanbad. okay. So, what are your views on petroleum engineering? In petroleum engineering means nowadays the job scenario is very low. So you have the only option that you have that to crack the gate and pursue a job in the PSUs. Or the another other option is to take the PhD in the petroleum engineering and to join the professor after the PhD. In a PDPU now, the means not in PDPU, all the colleges now placements ratio is very low in the petroleum engineering. So the after the means BTech, you can change your branch or you can pursue your MTech degree in IITs or you can means interdisciplinary, you can join with the interdisciplinary branches like the AI or ML. So in that branches, you have very safe future, I think. Okay. So, what is your GATE score and marks in GATE 2021, and how many times have you attempted for GATE examination? My marks is in 2020 is 83 and the score is 833, 833. I have attempted two times. In the 2020, I achieved a rank 110, and after that, I attempt again in 2021, and I achieved a 14 ranks. That's good. So, when did you decide that you want to attempt GATE examination as a serious career option, and when did you start preparing for the examination? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि मीन्स in a PDP, like there is a very prestigious college, so there is so many companies are recruiting in there. But 2020 में हुआ ऐसा कुछ कि वहाँ पे प्लेसमेंट आना कम हो गए. So after 6 months, I decided to means at my final year. After 3 months, I decided to crack the gate because I don't think that the in PDPU company will come or recruit me. So I decided to crack the gate. So before 3 months गेट के तीन महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं गेट करूँगा. तो मीन्स 3 महीने में तो उतनी ज़्यादा उस टाइम मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, लेकिन जितना किया उससे वो गेट स्कोर मुझे मिला और उससे मैंने एमटेक में परस्यू कर लिया. और मेरा पहले से एक ही वो था कि मैं अभी जो भी हो मैं गेट क्लियर करना है अच्छे रैंक से बस. Okay, that's good. Also, you cleared it with very good rank. So, why, there are many other career options like CAT are there, government jobs are there. So, why did you choose GATE over all those other career options? सब जगह पे प्रिपरेशन की ज़रूरत तो होती है. और मैंने मतलब लास्ट ईयर जब मेरा चल रहा था तभी मैंने 3 मंथ की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका था. और मैं उससे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही यहाँ पे ही काम करना है, मतलब PSU में ही जाना है मेरे को. तो मतलब मेरा पहले से ही एक सेट गोल था कि मुझे यही करना है. सो मीन्स जब मार्च में रिजल्ट आया तो मैं एक मंथ तक वेट कर रहा था कि अभी क्या किया जाए, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से गेट शुरू कर दिया प्रिपरेशन करने के लिए. तो मेरा पहले से ही डिसाइड था कि मुझे गेट ही करना है. Okay. So, what was the difficulty level of GATE 2021 examination? This time in petroleum engineering, the paper was so easy because this time the IIT Bombay will conduct this exam. So IIT Bombay का पहले से है कि वो मतलब ज़्यादा बेसिक पे ध्यान दे, जिसका फंडा स्ट्रॉन्ग होता है वही वो मतलब अच्छे मार्क से क्रैक कर पाता है. तो IIT बॉम्बे था तो मतलब बेसिक से ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो आप आराम से क्रैक कर पाओगे उसका. और Okay. 2020 में ऐसा था कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था. तो मतलब जिसने पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो एडवांस लेवल पे मेहनत की है, वही उसमें रैंक ला पाता.
तो उस टाइम मैं मतलब प्रिपरेशन सिर्फ 3 मंथ की थी, तो उस टाइम में नहीं कर पाया था। मतलब क्वालिफाई सब हो जाते हैं, मैं भी वैसे हो गया था, लेकिन मतलब अच्छे रैंक से नहीं हो पाया था। तो फिर इस बार तो बेसिक पे काम किया था मैंने ज़्यादा, तो उस पे हो गया। Okay. So, did you take up any coaching, and how did the coaching help you in securing All India rank 14 in GATE examination? नो, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, सेल्फ प्रिपरेशन। Okay, that's good. So, which book or study material did you refer for preparation of GATE 2021 examination? And would you please like to suggest few books which will help to crack the examination? I must refer the different book for the different subjects. Hmm. Like I take from advice from my seniors who achieved 12 ranks in 2020. So I take advice from him. So for maths, there is a Made Easy. That is a best book for the GATE. And for the petroleum engineering, I in the reservoir, the mainly three portion is there: the reservoir, production, and drilling. So in reservoir, I refer the Tarek Ahmed book, and then the production, I refer the two book. One book is what's Harriet and War, and Harriet and War for the means production operations, and for the surface facilities, I refer the R.K. Bansal book. And for the drilling procedure, I refer the Rabia, but mainly three books. Okay. So, what are some important topics that should be focused while preparing for GATE examination? It's, in terms of book referring or in terms In of terms of strategies? topics, there are some topics which are very important. Like when we are going to give an exam, teacher also tell us this topic is important, so do this topic. So there might be some topic which you think are important while preparing for the examination. I think in that the reservoir is the very important topic, because in then reservoir में से ज़्यादातर 20 से 22 मार्क का आता है। इस बार भी 20 मार्क का आया था, अगले साल 14-15 मार्क का आया था। तो रिजर्वायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एंड ऑफ कोर्स मैथ्स एंड एप्टीट्यूड इज द वेरी मीन्स उसका बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, तो वो तो तुम्हें करना ही होगा। 30 मार्क्स का उसका पार्ट होता है, और 20 मार्क्स आप रिजर्वर में से कर लो तो 50 मार्क्स तो आपका वहाँ पे फिक्स हो गया। और उसमें भी मतलब आप सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हो तो मतलब इस 3 सब्जेक्ट को कवर कर लो, एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड द रिजर्वर इंजीनियरिंग, तो आप आराम से कवर कर पाओगे। और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अगर ये सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आई थिंक इन 2 months यू कैन कवर। बट आफ्टर दैट द स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स आर, जो छोटा छोटा टॉपिक होता है वो आपको रैंक इंप्रूव करने में काम आएगा। लाइक रीडिंग एंड प्रोडक्शन, दैट इज ऑफ कोर्स अराउंड 20 मार्क्स बोथ, एंड देन द एनहांस वर्ड रिकवरी 10 मार्क्स और 7-8 मार्क्स। एंड वो जो सब्जेक्ट होता है वो आपको रैंक इंप्रूव करने में, मतलब आप आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो उस हिसाब से आप आगे कर पाओगे। रैंक इंप्रूव करने के लिए छोटा छोटा टॉपिक करना होगा, लेकिन सिर्फ आपको कुछ कुछ IITs में उसमें एमटेक की परस्यू करना है तो फिर आप ये 4 या 5 सब्जेक्ट मिला के आप आराम से कर पाओगे। मैथ्स, Okay. एप्टीट्यूड, रिजर्वायर, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन, ये 5 सब्जेक्ट मिला लोगे तो आप मतलब 60-70 तक पहुंच जाओगे, अगर पेपर इजी रहा तो। Okay. So, Milan, strategies are very important when we are preparing for examination. So, what was your preparation and revision strategy? माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाज, मैं जब सुबह उठता था तो पहले मैं जो मतलब मुझे जिस सब्जेक्ट में नहीं मज़ा आता मैं वो करता था पहले। तो सुबह में 3 घंटे तक मैं मतलब पढ़ाई करता था। तो जो रीडिंग करना होता है वो मैं सुबह करता था। और उसके बाद जब मैं 12 बजे के बाद खा के फिर जो मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व करता था। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में हमेशा दोपहर के बाद करता था। और यही और संडे और सैटरडे जो मैंने पूरा 5 दिन का पढ़ाई किया उसका रिवीजन करता था। तो मतलब ऐसे ही मैंने पूरा कोर्स किया है, और एक सब्जेक्ट के बाद एक सब्जेक्ट के बाद एक सब्जेक्ट का लेता गया था। ऐसे ही पूरा स्ट्रेटजी था मेरा। Okay. So, Milan, when we are going to give an competitive examination,
The time management strategy is very, very, very important. We have to manage our time कि exam में छूट ना जाए. So what was your time management strategy for attempting questions in the examination? अच्छा, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट में मतलब इस साल गेट में MSQ भी ऐड हुआ था, मल्टी सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो मैंने ऐसे टाइम मैनेजमेंट किया था कि जो क्वेश्चन मुझे पहले आते थे, मतलब मुझे लगा कि इसमें 2 मिनट भी देर लगेगी तो मैं वो नहीं करता था। पहले जो भी क्वेश्चन पूरा 65 क्वेश्चन लेके गया था, और जो भी क्वेश्चन मतलब एक ही मिनट में मुझे आ जाए, लगता था कि मतलब इंस्टेंट आ जाएगा, वो मैं पहले कर देता था। तो उससे आपका क्या पूरा लेवल, ग्राउंड लेवल बन जाता था कि आप सबके साथ मतलब ये सब कर लो तो आप सबके साथ खड़े रह सकते हो। उसके बाद आता था जो आपका 2 मिनट का और 3 मिनट का क्वेश्चन होता है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है, वो आता है, जिसमें कुछ ट्विस्ट होता है। तो उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन लिए थे। अगर उसमें भी मुझे लगे कि इसमें और थोड़ा टाइम ज़्यादा, तो मैं वो छोड़ देता था। तो ऐसे में 3 राउंड लेके गया था। पहले राउंड में मतलब पूरा जो इंस्टेंट वाला होता है वो कर दिए थे। फिर मैंने 2-2 3-3 मिनट के जो होते हैं जिसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, वो फिर मैंने कर दिए थे और लास्ट तक लेके गया था। और ये सब करने के बाद भी मेरा शायद आधा घंटा का टाइम बच गया था। तो उसमें मैंने पूरा रिवीजन एक बार किया था कि ये सब मतलब जो न्यूमेरिकल किए थे वो फिर से एक बार चेक किए थे, क्योंकि इसका पेपर भी मतलब इजी था, तो मतलब मुझे इतना टाइम मिला था। लेकिन जब मैंने 2020 में दिया था तो भी मैंने मतलब उस टाइम मेरा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं था, तो मैं 2 राउंड भी तरीके से नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार मेरे 3 राउंड हो गए थे, मतलब ऐसे करते करते हुए, और उसके बाद भी थोड़ा टाइम बचा। तो टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक। So, how did the current COVID-19 pandemic affected your studies and routine? तो कोविड ने तो काफ़ी अफेक्ट किया है इस बार, क्योंकि अगर ये सब नहीं मतलब हमारी कॉलेज से ही प्लेसमेंट आ रहे थे 2020 में, लेकिन ये सब अफेक्ट नहीं किया होता तो हम तो वहीं से भी कोई भी जॉब पे लग सकते थे। लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं लगी, फिर मैंने तब भी गेट ट्राई किया था। तो मतलब पहला तो ये है कि गेट गेट का तो कुछ बात ही नहीं है। पहले तो हम मतलब जिस कॉलेज में होते हैं वहाँ से अगर कोविड नहीं आया होता तो प्लेसमेंट पे लग सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बात आई कि गेट दिए, तो गेट में माय फ्रेंड वाज अचीव्ड 8th रैंक इन 2020। सो उसका भी अभी तक मतलब उसने गेट दिया था, उस PSU ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था, लेकिन अभी तक उसका भी रिक्रूटमेंट और वैकेंसीज नहीं आई है, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। तो मतलब बहुत, और 2020 के भी नहीं आए थे। तो 2021 तो मतलब ऐसा था कि हमें कुछ पता नहीं था, ऐसा मोटिवेशन भी नहीं था कि PSUs आएगी कि नहीं आएगी, उसका कुछ नहीं था, नोटिफिकेशन भी नहीं था। फिर भी हम करे जा रहे थे। और लास्ट के 2 मंथ को ऐसा भी हो गया था, गेट के पहले लास्ट के 2 मंथ, कि मतलब उसकी नोटिफिकेशन नहीं आए थे तो बच्चे छोड़ के जा रहे थे कि नहीं करना गेट, अभी तो क्या उसमें नहीं आएगा। तो ऐसा भी हो रहा था। तो मतलब काफी अफेक्ट किया है गेट। Okay. I hope the situation gets better for you. So, how did the last year gate pattern differ from this year's? तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि गेट में मतलब जो फोकस्ड पेट्रोलियम इंजीनियर है, जो उसने पेट्रोलियम इंजीनियर की मतलब तैयारी की है ना, वो लास्ट ईयर नहीं कर पाया था, क्योंकि क्या था कि पेपर पूरा डाइवर्सिफाई हो गया था। अब हम पेट्रोलियम इंजीनियर से पेपर दे रहे थे और पूछ रहे थे कुछ केमिकल में कुछ आंसर क्वेश्चन आ रहे थे, और पेपर भी बहुत हार्ड हो गया था, और न्यूमेरिकल भी इतने ज्यादा थे कि मतलब वी हैव नॉट टाइम टू गेट एवरी टच द एवरी क्वेश्चन। तो मतलब पेपर इतना बड़ा लेंथी था, न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे, और पेपर इतना डाइवर्सिफाई था। तो मतलब उस टाइम पेपर बहुत टफ था। और इस साल का पेपर मैंने बोला आपको पहले कि मतलब बेसिक पे पूरा किया था, और बेसिक ही था, और पूरा पूरा का पूरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे फोकस किया था उसने, क्योंकि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का मेन पार्ट होता है रिजर्वायर इंजीनियरिंग, और उसमें उसने आई थिंक 20 to 22 मार्क्स उसने रिजर्वायर इंजीनियरिंग में से लिए थे। I think this paper was means easy but focused on the petroleum engineer, और उस साल वो पूरा पूरा डाइवर्सिफाई हो गया। तो उस साल तो मतलब कोई भी मार्क ला सकता है, जिसने मतलब ऐसे पूरा प्रिपरेशन करने की उस टाइम जरूरत नहीं थी, लेकिन इस टाइम थी, ऐसा था। Okay. So, would you like to throw some lights on GATE 2022 petroleum engineering aspirants? 22 मतलब उसमें तो
मतलब उसको पहले तो आप डिसाइड करो कि क्या आपको क्या करना है। उससे पहले गेट का स्कोर अब मिलेगा तो उससे आपको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। एक तो आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो और एक तो आप पीएसयूज में जा सकते हो। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पीएसयू का अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब आप अभी आप एमटेक ओरिएंटेड ही हो कि आपको एमटेक ही करना है उसके बाद, तो आप वो यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक उसके पहले आपको 7 या 8 मंथ से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए 2020 को क्रैक करना है। क्योंकि अभी क्या पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। 2-3 साल से कंपनीज आ नहीं रही है इसको। पेंडेमिक में बड़े 2 साल तो हो गए अभी 2020 और 2021 में तो कभी कंपनी आई ही नहीं है। तो मतलब उसके टॉपर भी अभी प्रिपरेशन करते होंगे। तो मतलब आपको उससे भी आगे रहना, अगर आपको क्रैक करना है तो आपको उस टॉपर से भी आगे रहना पड़ेगा। क्योंकि वो सब जमा हो रहे हैं वहाँ पे, पीएसयूज आई नहीं है तो टॉपर्स जमा हो रहे हैं। तो शायद अगले साल मैं भी अगेन ट्राई करूँ। तो हो सकता है कि मतलब कंपटीशन पूरा बढ़ जाए तो आपके उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसके उसके बाद भी अगर कंपटीशन हो भी गई, आपका रैंक आ भी गया, तो उसके बाद भी डिसाइड फिक्स नहीं है कि कंपनी आएगी। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको एमटेक ही करना है तो फिर उसकी प्रिपरेशन थोड़ी ही रहती है, उतनी ज्यादा तक पीएसयू तक नहीं, मतलब पीएसयू तक जितना चाहिए हमें उतना तक नहीं पढ़ना पड़ता। तो मतलब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है एग्जैक्टली। अगर करना है तो उसके पहले 6 और 7 महीने से पहले आई थिंक आपको ये प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। Okay. So congratulations once again for securing All India Rank 14 in GATE 2021 Petroleum Engineering Examination. And thank you for giving us your valuable time. And FindMy Test team wishes you all the best for your bright future. थैंक यू।